India is fascinating, beautiful, and highly diverse. In this spiritually conscious country, women play varied roles from powerful goddesses to Bollywood actresses, from CEOs to stone crushers. They are teachers, lawyers, and IT engineers. They work in automotive sector and construction sites to earn money to manage their family and household. Though women are named goddesses, symbol of love, patience, and tolerance, in everyday life, she still is deprived of many of our privileges. They are treated less important. Being neglected as a girl starts even before she is born. Indians prefer to have sons for many a reason. Especially they bring in money, whereas girls need to be paid dowry. Many baby girls are never born because ultrasound tests reveal their gender, and it is not difficult to find a doctor who will perform the illegal act of testing and aborting the baby for a little bribe. They are also killed shortly after their birth by either drowning them in a bucket full of milk, by feeding them dry grains of rice, or burying them alive. We present to you many facets of violence which girls and women are experiencing in India, as well as a group of sisters who are courageously working for the betterment, dignity, and rights of women. Kavita doesn't even remember at what age she ran away from her house. All that she remembers is her childhood at a government orphanage. पर मुझे थोड़ा बहुत याद है कि लड़ाई झगड़ा रोज का नहीं अच्छा लगता था, इसीलिए छोटे में पता नहीं क्या हुआ कि कोई मुझे छोड़ गया कि घर से भगा दिया, कुछ याद नहीं है। और वहाँ से ये मजबूरी हुआ मेरा कि वहाँ पे लड़कियों को बेच देते थे बाहर ले जाके। Alarmed with this fact, Kavita, along with her friend, ran away from the orphanage and landed up in a railway station. तो 1 साल 1.5 साल काम किया तो मैं बोली कि मैं सिस्टर लोग से बात करना चाहती हूँ, तो वो उसका हस्बैंड मुझे डांटने लगा। Need for more money and more freedom leads one astray, and the same happened with Kavita. यहाँ पे एक लड़की रहती थी नीना नाम की, उसने मुझे सिखाया कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे बहुत पैसा है। तो मैं वहाँ चली गई, मैं सोची कि बहुत सारा पैसा कमा के सिस्टर लोग के पास वापस चली जाऊँगी। फिर उसके बाद एक फैमिली में मतलब वहीं पे रहती थी फैमिली, उनके पास रहने लगी। फिर वो लोगों ने मेरा शादी करा दिया, बहुत अच्छे लोग थे। यहाँ पे सिस्टर लोग मुझे पढ़ाई सिखाए, लिखने के लिए सिखाए, खाना बनाना सिखाए, घर का काम जो होता है, और उसके बाद सिलाई कढ़ाई मुझे सिखाए है। मतलब हर चीज़ सिस्टर लोगों ने मेरा पूरा किया जो एक मम्मी पापा को पूरा करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा परिवार है वो अच्छे से रहे, उनका हर चीज़ पूरा हो सके। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दुख उठाया वो मेरे बच्चे ना उठाएं, कि वो हम जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में भटकी हूँ, मेरे जैसे और लड़कियाँ ना भटके। Part of Lucknow, where we found a lot of Jharkhand girls coming in search of work. They were also as hired in the institutions as well as in the families. It was very difficult to get them contacted in the families because families were afraid that we would get the secret out of them. So we would try different ways of getting in touch with them, get to know their stories and help them in whatever way we could. But that was the starting point of the inspiration to have a shelter home. One of the main reasons of domestic violence is alcoholism. Many marriages are at risk due to such social evils. Sunita, 21 years old, is also a tragic victim of this. After completing her class 12, she was given away in marriage, promising that she would be allowed to go for further studies. मेरी शादी 17 वर्ष की उम्र में हुई थी। स्टार्टिंग के शादी के 1-2 महीने तक तो ठीक था, पर उसके बाद थोड़ा बुरा होता रहा, और जैसे पापा एक्सपायर हुए उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा बुरा। But her alcohol-addicted husband did not keep up the promise. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर पे रह के पढ़िए और अपने खर्चे से पढ़िए। हमने उसके लिए भी
कह दिया कि हमें पढ़ना है और हम अपने ससुराल से अपने घर चले आए। और फिर हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का फॉर्म अपने वहाँ काकोरी के ही कॉलेज से फिल किया। और उसके बाद खर्चा हमने कैसे निकाला, हम इस वहीं काकोरी में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे हमने 2 साल टीचिंग की, घर में ट्यूशन दिए बच्चों को और भी जो होता था, इस तरह से हमने अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। अपने पूरे ख़ानदान से पहली लड़की थे जिसने ग्रेजुएशन का पेपर दिया था। She completed her graduation successfully. But happiness did not last long. हमने ग्रेजुएशन जब कंप्लीट की उसके कुछ दिन बाद मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड हमें वापस लेने के लिए हमारे घर आए और हम जाना नहीं चाहते थे अपने हस्बैंड की हरकतों की वजह से, बट मेरे मम्मी ने फोर्स करके ज़बरदस्ती हमें भेजा। उसी दिन से फिर से वही सब स्टार्ट। और फिर 13 जुलाई से लेकर 25 जुलाई को मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कि उन्होंने अपनी भाई को मारने की कोशिश की, अपनी मम्मी पे भी हाथ उठाया, अपने पापा पे भी हाथ उठाया और हम पे भी हाथ उठाया। एक जो रेस्पेक्ट हर लड़की चाहती है अपने हस्बैंड से, उनके नज़र में मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली पुअर है और उनकी फैमिली रिच है। She was not given the respect and was beaten up brutally by her husband. She could not tolerate it anymore and left her husband's house for good and filed for a divorce. अब तो वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि जितना एडजस्ट करना था 4 साल बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, बहुत बार घर वालों को भी बताया, पर जब एट द लास्ट मोमेंट किसी ने सपोर्ट नहीं किया तब अब हम नहीं जाना चाहते। कभी भी किसी को अपनी एजुकेशन नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन हर जगह साथ आती है, भले फैमिली भी सपोर्ट करना छोड़ दे पर एजुकेशन किसी का सपोर्ट नहीं छोड़ती है। तो आप सभी लोग चाहे वो इंडियन हो चाहे जर्मनी के हो, प्लीज़ एजुकेशन मतलब ज़रूरी होती है हर एक के लिए। In Indian society, as much as maybe in the world at large, we long for freedom. Women by and large are capable, but in a patriarchal society which also is capitalistic, which also sometimes is very biased, treats women as liabilities and not as assets. As long as women are excluded in social, economic, political, even religious, cultural matters that matter to them, when women are not included or allowed to participate in the decision making processes of these systems, violence will exist. What we need to bring is a harmonious society. What we need to have is work together for peace and harmony while asserting our rights. Let us all grow as in harmony, in justice, in compassion, and bringing about positive change, whether we are students or we are adults or we are older senior citizens. Courage is all that we need, says Parvati. She got married at a very young age of 12. After a few years of a happy married life, her husband was killed in a fight for property. जब तक वो रहे तब तक जीवन सही से बीतत रहा। उनके ना रहने से बहुत से दिक्कतें आ गई, बहुत से संकटें तकलीफें बहुत आ गई क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहे। ये लिए हमने गांव में घर में सास ससुर था, रहने नहीं देता था। आदमी के ना रहने से बहुत दिक्कतें हो गई। पता ना कौन पकड़ ले गया। उसके बाद में तीसरे दिन लाश मिली। तो इसलिए हम मेरे नंदो यहाँ रहते थे तो उनसे हम कहें कि अब हम कैसे अपने बच्चन के पालें। देहात में तो कोई काम नहीं रहता है। Since then, she had to struggle to bring up her 4 children. तो यही लिए उनके साथ में फिर यहाँ चले आए, अपन 4 घर पकड़े। अब क्या करें, सुबह से निकलते हैं शाम को जाते हैं। बच्चे के जाने के लिए बहुत कष्ट करना ही पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब क्या करें, बच्चे तो जियाना है। अगर हिम्मत ना होती तो बच्चे जी ना पाते, लेकिन मैंने हिम्मत किया कि हम अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से अपने औलाद को जियाएंगे। Having received no support from relatives or family, she comes to Lucknow to begin her life once again.
जेठ हमरे कुछ नशेड़ी रहे, नशा पानी करत रहे, जैसे दारू सारू पी लियत रहे, ये वजह से आदमी हम मारते हैं। अब हम किसके सहारे लड़े? बच्चे हमारे छोटे छोटे, हमारा सहारा कोई देने वाला नहीं। जब हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे तो कभी न कभी देंगे, नहीं देंगे तो आप सबके लोग के बीच में तो जीवन गुजरवे के नहीं है, क्या करें फिर? बहुत सहारा मिलती हैं। कोई अगर गाड़ संकट नवरात्रि में अगर कोई संकट पड़ता है तो हम आते हैं दीदी के पास, तुमको अच्छे संस्कार बताते हैं, अब सब जुड़े हुए हैं। We have travelled to Navjagriti Shelter Home at Lucknow in UP to meet the liberators and the liberated. In Navjagriti, we welcome young girls and women and make them feel at home. And once they are familiar, we just, if they are not educated, we teach them to read and write. And if they are educated, we try their talents and abilities and make them to realize what they can do. And other like tailoring, cooking, gardening and computer. Parents abuse their own child and own brother and they are abused. So that is really very touching experience. For us, parents love so much. We need care, love we receive from the family and parents and brothers and sisters. But this kind of cases, parents don't understand their children. They have many children and they don't give their love. That's why it is a really very touching experience we have seen. And God has done, He showed His service to the needy, poor and marginalized. Our dream is to empower women and young girls more and more. Children are undergoing severe torture in the houses and places they are employed at. Anju, a 12-year-old, is one of them. Because of poverty at home, her parents sent her to a faraway city for domestic work. मेरी मम्मी पापा हमको पूछे कि तुम जाओगी, तो हम मेरे मम्मी पापा को बोल रहे हैं ज़्यादा दूर है तो नहीं जाएंगे, मन भी नहीं लगता है और मारते हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे बोले। तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि जाओ, ये 1 महीना के लिए जाओ, फिर से छप्पर छरवा लेंगे और तुमको ले आएंगे। बारिश का दिन था तो हम भी सोचे, मेरी छोटी छोटी बहन है वो सब बारिश में ये गिर जाता छप्पर, तो वो छरवाने के लिए पैसा नहीं था, पापा का काम बंद हो गया था। फिर मम्मी छोटी बच्चा को लेके कहाँ जाती, इसलिए हम ही आ गए। 3 महीना थे हम उसी के घर में, तो जो भी गलती हो जाता था, शीशा फूट जाता था या कुछ हो जाता था, फिर बोलती थी कि मेरा घर का चीज़ कुछ भी हो जाएगा तो हम नहीं जानेंगे, और हर बात पे मार रही थी। एक दिन मेरे हाथ से तेल छूट गया था, तो तेल गिर गया था, तो उसी टाइम एक झापड़ मारी तो हमको लगा गलती किए हैं इसलिए मारी है बोल के हम कुछ नहीं बोले। Child labor and violence is still very rampant in different parts of India. The hands which are supposed to hold books and pen are carrying pots of water and broom. तो हम मेरे मम्मी को बता देते थे कि ये बहुत मारती है, हमको यहाँ से ले जाइए। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि हम उतना दूर कभी नहीं गए, हम कैसे जानेंगे, और जो हमको यहाँ पहुँचा रखा था उनको मम्मी बोलती थी कि जाओ मेरा बच्चा को ला दो। तो माँ बोल रही मेरे पास जब भी पैसा जमा हो जाएगा हम तुमको लेने आ जाएंगे बोल दी। Beating, scolding and restless work were her daily routine. कुछ नहीं, फिर नहीं खाते थे तो भी बोलती थी कि जो बात बोलते हैं उसी को करते रहो, हाँ एक भी काम अच्छा से नहीं करती हो बोल के फिर डांटते थे। उसी का बेटा को बोल रहे हैं कि हमको बाथरूम जाना है भैया, तो हम नीचे ही बाथरूम के लिए जाते थे, तो जाओ बोल रहे हैं। तो उसके बाद ना हम बारिश में भाग रहे थे। But she falls in the hands of young boys who wanted to exploit her innocence. With the help of an NGO, she reaches Navjagriti Shelter Home. Here, she awaits for the day to get reunited with her family.
This is a traumatizing experience of Shailaja, a 19-year-old girl who almost got killed by her relatives for ancestral property. She was helped by her aunt to come up in the early stages of her life after her parents were murdered. Her aunt did everything for her, but her sudden demise shattered Shailaja again. Being alone now, it was easy for her selfish relatives to try to kill her by making her drink milk with crushed glass pieces in it. In spite of all the struggle, she survived. दादी से मुझे सबसे अच्छी शिक्षा यही मिली है कि जैसे उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और जैसे उन्होंने मुझे समझा, मेरी माँ बनकर मुझे पाला पोसा, वैसे ही मैं दूसरों के लिए भी करूँ। जब मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था बहुत ज़्यादा, ये पता था हाँ मम्मी डैडी की डेथ हो गई है। रोमा, अच्छा। जब मेरी दादी की डेड बॉडी लेके हम लोग घर आए थे, उसके बाद में किसी ने भी उनका क्रियाकर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब कुछ पंडित जी ने मुझसे करवाया। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं जाकर सभी को शूट कर दूंगी, बताइए। बट आप लोगों ने मुझे ये शिक्षा दी कि सभी को क्षमा कर दो। प्रभु यीशु बोलते हैं कि क्षमा करने वाला बहुत ही बड़ा होता है। तो मैंने सभी को उसी दिन से क्षमा कर दिया था। मुझे कोई रिवेंज नहीं लेना और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। Can you believe a girl of 10 years getting married to a man of 50 years? This is the story of Tarunam Fiza. मेरी 10 साल की उम्र में शादी हुआ था। मेरा निकाह वहीं पे हुआ था जाके, आजमगढ़ के आगे अतरौलिया पड़ता है, अतरौलिया में मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरा पीरियड नहीं आ रहा था, मासिक तौर से नहीं हुई थी। हमको नहीं पता था बच्चा क्या होता है। जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते थे हमको नहीं पता था, मैं दिन रोती थी कि मेरे पास क्यों आते हैं, मारते थे। तो उन्होंने कहा कि चच्ची मुझे एक बार दे दो, मुझे एक बार चाहिए। तो मैं बहुत रोने लगी थी, क्या चाहिए, सब कुछ मांगते रहते हैं, क्या चाहिए। और उसके बाद ससुर ने बोला कि हस्बैंड के साथ सोना, ऐसे ऐसे गलत काम करना। तो फिर मैं रोने लगी, फिर मैं फांसी लगाने लगे। तब मेरा मार के हाथ पैर बांध के मारने लगे, सब कोई मारने लगा। She could not bear with the violence that was done to her at her husband's house. She came back to her mother for security, but her own mother rejected her. मेरे पापा ने मुझे बहुत लाठी से मारा, मेरा हाथ फट गया था। फिर ऐसे सोई थी। फिर एक दिन मट्टी तेल छिड़क के जलाने जा रही थी। मेरी मम्मी बोली तुमको हम जला डालेंगे, तुमको जला डालेंगे, नहीं रहना तुमको जिंदा। फिर मैं ऐसे घर छोड़ के भाग गई। कुछ दिन के लिए मैं घर छोड़ के भागी थी। ऐसे बस में घूम रहे थे, बिना किराए के घूम रहे थे। फिर मैं लखनऊ चली आई। काफ़ी दिन में स्टेशन पे थी। फिर मैं स्टेशन पे थी, मुझे सिस्टर मिली। सिस्टर से मुझे काफ़ी मदद मिली। सिस्टर मैरी मुझे मिली हुई थी। मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ। Everyone wants to love someone and wants to be loved. Tarunam was no exception. She trusted a young boy who promised to marry her. She believed those false promises and waited for 3 long years. One day, she came to know that this boy is already married. सिस्टर ने काफ़ी हमको समझाया, लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्योंकि मैं मम्मी पापा का प्यार नहीं पाई थी। उसका प्यार पा के बहुत सब कुछ भूल गई थी मैं। ऐसे आ गई हुई थी छुट्टी पास करा के। तो फिर पता चला उसके घर में एक लड़की ने फ़ोन किया कि ऐसे शादी हो गया था। मैं बोली उसकी आवाज़ सुनाओ। उसने आवाज़ सुनाया तो मैं गुस्से में गई, चाकू खरीद के उसके घर पे गई। मैं बोली कि हम तुमको मार डालेंगे या खुद मर जाएंगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों किए। तो हम गुस्से में मार और दिया, हाथ तो मेरा कट गया, लेकिन वो कुछ भी जवाब हमको पलट के नहीं दिया। एक जीने का मुझे सहारा मिल गया कि कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन फिर भी इन्हें ऊपर वाले मुझे सहारा दिए। नवजागृति से मुझे बहुत कुछ मिला सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मुझे कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो मुझे सीखने की बहुत जल्दी होती है कि मैं ये चीज़ मुझे सीख लूँ।
बहुत ज़्यादा सीख लूँ। अपनी हार कभी नहीं मानना चाहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लड़कियों को भी अपने सजग होना चाहिए, अपना जिस्म खुद बचाना चाहिए। Taranam's message for us is very clear. The world is a difficult place to live in, especially for a woman in India. Be strong and be confident in yourself. We have met these women who shared their stories. Their lives have been mutilated. Some are strong and courageous. The sisters at Navjagriti stand with them and stand for them, empowering and uplifting them. The process of healing has already begun and is still on. Bangles enhance the beauty of womanhood. Broken bangles and broken families are not a credit but a curse. Let's join hands to protect the bangles from being crushed. Noble hearts and hands are welcome to make a difference in the lives of the thousands who are marginalized all over the world.